Myself Dr. Rajesh Kumar Bhatia, and in my channel you will find out the Signal and System lecture series. This is the lecture number 1. In the Signal and System, basically why we want to learn, because this subject is the, you can say, heart of the DS electronics or electrical engineering, right? So in the major portion of the gate will also come, as well as there are a lot of other competition like public sectors and all other exams. You will find major portion of signal and system. For example, in 2015 there are 8-mark portion of the signal and system in the GATE exam. So it contains lot of marks as compared to other subjects, as well as this subject consists of many other subjects like digital signal processing, like control system, like communication system, circuit analysis, robotics, embedded, VLSI, and many more, right? So this is a very important signal and system subject. Thank you. Please subscribe my channel and share it. You continue this point A, point and so on, right? Sir, why is Here it not clear? Anybody have any problem? सर आवाज नहीं आ रही सर आपके आ रही है आवाज? नहीं सर नो सर आ गई सर अभी तो समझ रहा है एक मिनट, एक लेट अस सी आवाज कौन बोला ये ज्ञानी दोबारा। हेलो हेलो, हाँ सर अब हाँ सर अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है यस सर, आप आ रही है। ठीक है, ठीक है। So continuous amplitude, continuous time signal, when we sample in time, it gets converted into continuous amplitude but discrete time signal, right? Time क्या हो गया? Discretize हो गया, but amplitude is continuous. Again, continuous means not all values, at least one non-integer value, right? That is the meaning of continuous amplitude discrete time signal. In other way, you can call it analog discrete time signal, right? So analog continuous time signal converted into analog discrete time signal by the use of sampling in time, right? So that is the process, sampling in time. एक पूरा there is a unit in which we will discuss this sampling in time, right? So here we get a signal which is of this type, right? That is continuous amplitude and discrete time. After this, we want to make amplitude is also as integer value. So for this, we use a method that is called quantization. Quantization. Quantization, what is that? In quantization, what we will do, in quantization, we quantize the values. That is, we take the levels, integer levels. The lower level will be always 0 and upper level will be 1, 2, 3 and so on. So whatever the lowest value it has, we put that value as 0, right? And then next level will be 1 and so on, right? Now see how we do it, quantization. Quantization is nothing but the rounding off the values. Rounding off values means अगर ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, ये सैंपल की वैल्यू है, इन दोनों के बीच में आ रही है, और इसकी वैल्यू अगर 0.5 से ऊपर है या 0.5 के बराबर है, then this value gets converted into 1, right? Suppose 0.75 है, तो 0.75 will be between 1 and 0.5, so it gets converted into also 1. Similarly, if there is a value between 1 and 2, but suppose its value is 1.3, that is less than 1.5. If it is less than 1.5, it gets converted into 1. Right? So rounding off the values. So here, at this point, what we get? We get a discrete amplitude and discrete time signal. Discrete amplitude is nothing but
the values are rounded off to its nearest value, nearest integer value, right? तो अगर वैल्यू मान लीजिए 2.99 है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी 3 में, 2.5 है तो भी 3 में कन्वर्ट होगी, राइट? तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसकी टाइम एक्सिस भी डिस्क्रिटाइज हो गई और एम्पलीट्यूड एक्सिस भी डिस्क्रिटाइज हो गई. So both axes are discretized in this case. So when it will happen, we call this signal as discrete amplitude, discrete time signal, right? After this, the third process is known as encoding process. Encoding means what? Encoding means first we do coding of it and then we make an electrical signal from it, and that process is known as encoding, right? So encoding is what? Encoding means providing a code value and then provide the electrical signal from this coded signal. So there are two processes. First is coding and then making the electrical signal from the coded signal. So that is called encoding, right? So how we do this? यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें टाइम एक्सिस डिस्क्रिटाइज मिली और एम्पलीट्यूड भी कैसा मिला, डिस्क्रिटाइज मिला. यानी कि अगर ये 1 है ये 2 होगा, ये 3 होगा. इनके बीच में वैल्यू नहीं होगी एम्पलीट्यूड की, 1 और 2 के बीच में वैल्यू नहीं होगी. सेम ऐसे ही टाइम एक्सिस पर भी क्या हो गया, डिस्क्रिटाइज हो गया, राइट? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम इनकोडिंग करेंगे. इनकोडिंग करने से पहले क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे और फिर उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे. इसमें स्टार्ट हमेशा 0 टाइम से करते हैं. 0 टाइम पर वैल्यू है 1, फिर है वैल्यू 2, फिर है वैल्यू 3, मान लीजिए फिर वैल्यू है 1 एंड सो ऑन, राइट? ये 0 टाइम पर है, राइट? ये 1 टाइम पर, ये 2 टाइम पर, ये 3 टाइम पर, ये वैल्यूज हैं इसकी सिग्नल की 1 2 3, राइट? कहीं से भी दिक्कत हो तो मुझे रोक देना, राइट? बिकॉज इट इज ए ऑनलाइन मोड, so I cannot guess whether you are learning properly or not. किसी भी एक बंदे को भी दिक्कत है मुझे रोक देना. I will stop and I will restart. So at this value 1, this 1, how we convert this 1 into code? This 1 will be converted into a binary code. This 1 is converted into a binary code. अब binary code सबको पता है. I think सबने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई होगा, बाइनरी कन्वर्जन पढ़ाई होगा. 1 को अगर मैं 4 बिट में लिखूं तो ये हो जाएगा 0001. देन 2 क्या हो जाएगा 0010. 3 क्या हो जाएगा 0011. 1 क्या हो जाएगा 0001. ये 4 बिट में हमने लिखा है. अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में कि ये 4 ही बिट हमने क्यों ली, 2 बिट क्यों नहीं ली या 8 बिट क्यों नहीं ली. ये सब डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन लेवल पे. Q इक्वल टू 2 to the power n होता है. जितने क्वांटाइजेशन लेवल लेते हैं उसका 2 to the power n होता है और n is the number of bit representation of each value, right? जहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े. कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताएं. दोबारा से देख लीजिए जिनका टूट गया था. कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हमने कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया यूजिंग ए प्रोसेस सैंपलिंग इन टाइम. टाइम एक्सिस को डिस्क्रिटाइज करने के लिए. फिर एम्पलीट्यूड एक्सिस को डिस्क्रिटाइज करने के लिए we use quantization method. In quantization method, we just round off the value to its nearest integer value. Then we get a discrete amplitude, discrete time signal. After this, we are getting a signal like this, right? Values are discretized, means they are integer only, and time is also integer. After that, we code the signal. Code means binary code here. So binary of 1 is 001, 2 is 0010. Here I am putting 4 bits for one single value, right? This will depend upon the quantization level, number of quantization levels required to quantize it, right? So that's why it's like detail. Don't worry about how we decide. Yes. Anybody have any problem? Yes, sir. Sir, अगर एक मिनट, जब भी किसी को प्रॉब्लम हो ना तो अपना नाम जरूर बताएं, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि कौन पूछ रहा है. सर, दिस इज राघव तिवारी.
राघव बताएं बेटा कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर अगर टाइम 0 से शुरू हो रहा है और उसके ऊपर सिग्नल्स की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आ रही है, अगर नेगेटिव आती है तो क्या उसका भी बाइनरी इनकोडिंग होती है? नहीं, मैंने बताया ना, यहाँ पे क्वांटाइजेशन लेवल जो भी लोएस्ट होगा, ये नेगेटिव Yes, sir. है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, लोएस्ट वैल्यू जो भी होगी उसको हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे जो signal मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, यस सर। राइट, उसके बाद ये जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड क्वांटाइजेशन के बाद जो सिग्नल मिल रहा है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी रहेंगी, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। वो इसलिए किया गया है कि कोडिंग में नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर माइनस वाला होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यस सर। यस सर। जो भी लोएस्ट वैल्यू होगी उसको 0 लेंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर, गॉट। तो यस। ये बिट पैटर्न बना लिया अब हमने, राइट। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये बिट पैटर्न में किसी वायर में भेज सकता हूँ? ये डायरेक्टली मैं 0 थ्रो कर सकता हूँ क्या? 0 और 1 थ्रो कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना पड़ेगा इसका, राइट। दैट इज कॉल्ड द इनकोडिंग, राइट। पुटिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द कोडेड सिग्नल इज नोन एज इनकोडेड सिग्नल, राइट। तो इनकोडिंग कैसे करेंगे? 0 को क्या करेंगे? 0 को लो वैल्यू एंड 1 को हाई वैल्यू, राइट। देन लो वैल्यू, देन यहाँ पे भी 1 आ रहा है उसको हाई कर देंगे, और जो 0 आ रहा है उसको लो कर देंगे। जहां पे भी 1 है उसको हाई और बाकी को लो कर देंगे, राइट। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो अब ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया? ये सिग्नल, दिस इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। अब आप कहोगे कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जैसा ही है, राइट। हमने कल भी लिया था एक ऐसा ही सिग्नल, जो यहां पर क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। यहाँ पर इन पॉइंट पे क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है, राइट। तो अगर केवल आपको ये सिग्नल दिया है तब तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलेंगे, लेकिन अगर आपको ये बोल दिया गया इनकोडेड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अगर ये बोला गया, इनकोडेड वर्ड यूज किया गया, देन दैट विल बी द डिजिटल सिग्नल। बहुत माइन्यूट का डिफरेंस है डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड और डिस्क्रीट टाइम में। अच्छा, जो आपको ये वाला एग्जांपल दिया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, उसमें ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में ये वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती। ये वैल्यू 5 वोल्ट होगी जैसे, या कुछ और हाई लेवल हाई वोल्टेज देते हैं 10 वोल्ट या 15 वोल्ट, जैसे भी डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, राइट। तो ये आपका क्या सिग्नल हो गया? दिस इज द डिजिटल सिग्नल, राइट। तो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम इनकोडेड सिग्नल, इनकोडिंग होना बहुत जरूरी है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर डिजिटल सिग्नल। तो इनकोडेड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। Anyone have any doubt on this? आगे सर इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब कभी भी नीचे नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये वाला यहाँ पे जो मिलेगा ना टाइम में, ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? नीचे भी आएगा। और यही इसका डिफरेंस है, यही आप इसमें भी पकड़ सकते हो। ये 0 से 5 वोल्ट आया, ये आ गया आपका, राइट। तो यस सर। क्लियर है यहाँ पे? यस तो दिस सर। इज द डिजिटल सिग्नल। क्लियर है? तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत है अभी भी तो पूछ लें। Should I wrap now? सर कर रहा हूँ। हाँ जी, सर माई सर प्रियांशु सिंगल। या प्रियांशु। सर CACT और CTS सिस्टम दोनों में डिफरेंस होता है क्या? सिस्टम नहीं, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं सॉरी सर, हम। सिग्नल सर। हाँ, सीटी CTS एंड CACT।
CTS एंड CACT। हाँ, बहुत डिफरेंस है। ये केवल कंटिन्यूस टाइम है, ये वाला सिग्नल कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड भी है और कंटिन्यूस टाइम भी है। ये वाला सिग्नल जो है डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड हो सकता है इसका। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है बट एम्पलीट्यूड इसका डिस्क्रीट हो सकता है, और ये वाला कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यहाँ पे केवल टाइम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों फिक्स हो गए कि कंटिन्यूस है। क्लियर? देवांशु क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नहीं है प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द सिग्नल विच वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, द लिस्ट इज इवन एंड ऑड सिग्नल। The sequence of this type doesn't matter. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, that doesn't matter. बट हमेशा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आगे की कहानी पढ़नी चाहिए। नाउ इवन एंड ऑड सिग्नल की बात करेंगे अभी। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि XP इज, व्हाट इज XP? प्रियांशु, व्हाट इज XP? Priyanshu, what is XP? सिस्टम सर। Are you the हेलो। is a continuous time signal and XN is a डिस्क्रीट टाइम। discrete time signal, right? ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो। CTS, XT, XN, CTS, right? Now even and odd signal की जो डेफिनेशन है वो दोनों के लिए सेम है, right? तो मैं एक की डेफिनेशन लिखूंगा और इस पूरे कोर्स में यही चीज चलेगी। जो चीज एक के लिए होगी वो दूसरे के लिए भी होगी। अगर कहीं पे भी अलग होगा तो वो मैं स्पेसिफाई करूंगा, राइट? तो जैसे इवन एंड ऑड सिग्नल की जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस टाइम के केस में वो ये है, XT इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। XT इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये टाइम एक्सिस है आपकी, राइट? ये मेरा एक सिग्नल है, राइट? और ये थोड़ा टिल्टेड है, अदरवाइज ये डिस्क्रीट टाइम हो जाएगा। ये टिल्टेड है, इस तरह से है, राइट? ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है 1। दिस इज एक्स ऑफ टी एंड दिस इज टाइम एक्सिस टी। इधर 0 है, इधर 0 है, राइट? और ये एक ट्राइंगल शेप का है, राइट? ये क्या है? एक्स ऑफ टी। अब इससे अगर मेरे को एक्स ऑफ माइनस टी बनाना है, राइट? इस चीज को बोलते हैं फोल्डिंग इन टाइम, राइट? या इन्वर्जन। फोल्डिंग इन टाइम और इन्वर्जन, राइट? तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे जो पॉजिटिव टाइम, ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। पॉजिटिव टाइम पे जो भी था उसको क्या करना है? नेगेटिव टाइम पर करना है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखिए दूसरा मोबाइल फोन है, इसमें क्या करना है? ये टाइम एक्सिस है हमारी, दिस इज द टाइम एक्सिस। तो हमें क्या करना है? हमें रोटेट करना है इसको इस फॉर्म में, राइट? तो जो चीज पॉजिटिव टाइम पर थी वो कहां आ जाएगी? नेगेटिव टाइम पर आ जाएगी। और जो नेगेटिव टाइम पर थी वो कहां आ जाएगी? वो पॉजिटिव टाइम पर आ जाएगी। इज दिस क्लियर? सर किस एक्सिस को रोटेट करना है? हेलो, दोबारा देख लीजिए, ये पॉजिटिव टाइम है, राइट? ये मान लीजिए 1 है, ये -1, राइट? तो अब मेरा 0 से -1 पे ये क्या है? इस तरह का शेप है, ये ऐसा, राइट? और 0 से 1 के बीच में ये कैसा शेप है? ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है,
तो ये चीज क्या हो गई, दिस इज एक्स ऑफ माइनस टी। ये चीज क्लियर है रक्षा? इज दिस क्लियर? सर इसको Yes, sir. टाइम एक्सिस, इज दिस क्लियर? यस आपकी सर, आवाज सर नहीं इसको आ रही। टाइम, सर इसको टाइम एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाया है। Have any problem in this to understand? Holding in time means टाइम एक्सिस पे जो भी पॉजिटिव टाइम पे आ रहा है वो क्या करना है, नेगेटिव टाइम। जो भी नेगेटिव टाइम पे हो रहा है उसको क्या करना है, पॉजिटिव टाइम। इसमें एम्पलीट्यूड का लेना देना कुछ नहीं है, आपका टाइम एक्सिस का है, राइट। होल्डिंग इन टाइम है, राइट। घुमा जरूर के अराउंड रहे, एम्पलीट्यूड एक्सिस के अराउंड घुमा रहे, लेकिन टाइम एक्सिस पे कंसंट्रेट करना है कि पॉजिटिव टाइम पे जो चीज है वो नेगेटिव टाइम पे आ जाएगी, जो नेगेटिव टाइम पर है वो पॉजिटिव टाइम पर आ जाएगी। Is this clear to all? यस सर, Is this clear to all? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज ही नहीं जा रही यार। Yes, sir. Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या बात है भाई, कोई नहीं बोल रहे हैं। Is this clear to all? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। Hello. राष्ट्रीय सर आपको आवाज नहीं आ रही? What happened? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक सिस्टम बंद सही करो आपका। नगर यस सर। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। hello. ऋषभ जैन, सर माइक। यस सर। ऋषभ जैन, सर वापस रिस्टार्ट करो। यस सर। यस सर। हेलो। I am audible to all? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। यस सर। भाई आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है? सर आपके सिस्टम में खराबी है। अच्छा ऐसा है, चलिए धन्यवाद बताने के लिए। देखिए ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। फोल्डिंग इन टाइम। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इवन फंक्शन कैसा होगा, जिसमें xt और x माइनस टी दोनों बराबर होंगे। क्या ये दोनों सिग्नल बराबर हैं? नो सर। क्या ये तीनों सिग्नल बराबर हैं? No, sir. No, sir. तो ये कैसा सिग्नल हो गया, इवन सिग्नल नहीं है। ये कैसा सिग्नल हो गया, इवन सिग्नल नहीं है। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक ये एग्जांपल लिया, ये क्या है, एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे बनेगा, एक्स ऑफ माइनस टी कैसे बनेगा, जो भी पॉजिटिव पर है 0 से 1 के बीच में है Same ही बन जाएगा सर। नेगेटिव एक्स। हाँ सेम बन जाएगा। -1 तो जो भी 0 से 1 था वो क्या आ गया, 0 से -1। जो 0 से -1 था वो 0 से +1 आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका सिग्नल, ये आपका इवन सिग्नल हो गया, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड इवन सिमेट्री, इट इज आल्सो कॉल्ड इवन सिमेट्रिक सिग्नल, राइट। अब ऑड सिग्नल क्या होगा, दिस इज द इवन। ऑड क्या होगा, ऑड में आपको एक्स ऑफ माइनस टी के अलावा एक माइनस यहाँ बाहर एम्पलीट्यूड पर भी लेना होगा, राइट। जब आप एम्पलीट्यूड पर माइनस ले रहे हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, इस वाले में अगर मैं एम्पलीट्यूड पे माइनस ले लूं, ये अभी मेरा एक्स ऑफ माइनस टी है, माइनस एक्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है 1 वो आ जाएगी नीचे, और ये जो वैल्यू है नीचे -1 वो आ जाएगी ऊपर, राइट। तो ये हो गया 1, ये -1, ये 0, राइट। ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। क्या ये और ये सिग्नल बराबर है? These two signals are they Yes, same? sir.
यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है कैसा है, Odd ऑड ऑड सिग्नल, सिग्नल। राइट। तो दिस इज ऑड सिमेट्री, ऑड सिमेट्रिकल सिग्नल, एंड दिस इज इवन सिमेट्रिकल सिग्नल एग्जांपल। सेम ऐसा ही आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी डेफिनेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल डिस्क्रीट टाइम में भी ले लेते हैं। xn equal to minus x minus n. This is the odd signal. xn equal to x of minus n. This is the even type of signal. एक एग्जांपल फटाफट, 0 पर मान लीजिए ये 1 है, ये 1 पर 2 है, 2 पर 3 है, राइट। आप बता सकते हैं -1 पे क्या होगा अगर ये इवन सिग्नल है तो। अब ये इवन सिग्नल होता तो -1 पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? सर 1। सर 0। नहीं, -2। नहीं, 2। 2। 3। ये मेरा एक्स ऑफ एन सिग्नल है, ये एन एक्सिस है। एक्स ऑफ माइनस एन लीजिए जरा, क्या आएगा? सेम आएगा कि नहीं? देखिए 0 पर एज इट इज, 0 वाली लाइन एज इट इज रहती है, फिर पॉजिटिव टाइम वाली नेगेटिव टाइम पे आ जाएगी। जो 1 और 2 पे है वो -1 और -2 पे आ जाएगा, जो 1 और 2 पे है वो -1 और -2 पे आ जाएगा। ये आ गया, राइट। और जो -1 और -2 पे है वो +1 और +2 पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। So that is the folding in time in discrete time. This is called folding in time or inversion in time in discrete time, right? तो ये सिग्नल और ये सिग्नल क्या है? बराबर है। तो ये कैसा सिग्नल हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन सिग्नल, राइट। और सिग्नल क्या हो जाएगा? देखिए जरा, ये अगर x ऑफ n है, ये अगर x ऑफ n है तो इसका इन्वर्जन क्या हो जाएगा? x ऑफ -n। 0 पर एज इट इज 0 है, 1 पर जो चीज है वो आ जाएगी -1 पे, तो ये हो जाएगा +1। और जो चीज 2 पर है वो कहाँ जाएगी? -2 पे, यानी कि +2। जो चीज -1 पे है वो +1 पे आ जाएगी, यानी वैल्यू है इसकी -1। और जो चीज -2 पे है वो +2 पे आ जाएगी और वैल्यू है -2। ये तो हो गया फोल्डिंग इन टाइम। दिस इज x ऑफ -n सिग्नल। अभी ये दोनों सिग्नल बराबर नहीं है, राइट। दीज टू आर नॉट सेम। सेम का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर सेम हो, राइट। हर एक पॉइंट पर सेम नहीं है, केवल 0 पर सेम है, बाकी सब पे अलग है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? -x -n, राइट। -x -n करूंगा तो क्या मिलेगा? -x -n करूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेम। ये वाला यहाँ आ जाएगा। दिस वन विल बिकम दिस एंड दिस वन विल बिकम दिस। ये यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। अब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, राइट। अगर हम -x -n लेते हैं तो ये दोनों सिग्नल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज एन ऑड सिग्नल, राइट। दिस इज एन ऑड सिग्नल। क्लियर हो गया ये ऑड और इवन? अब इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में 100%। आई एम श्योर अबाउट दिस। क्वेश्चन आता ही है, मिड टर्म में भी आएगा ही और फाइनल में भी आता है। देखिए कैसा आता है। मान लीजिए सिग्नल दिया हुआ है, मान लीजिए एक सिग्नल दिया हुआ है ऐसे। कोई कुछ पूछ रहा है तो पढ़ ले। मान लीजिए एक ये सिग्नल है मेरे पास,
दिस इज एक्स ऑफ टी। अब जरा फोल्डिंग करते हैं इसकी दोनों, टाइम फोल्डिंग और एम्पलीट्यूड फोल्डिंग। ये हो गई टाइम फोल्डिंग। टाइम फोल्डिंग में क्या करेंगे, जो चीज 0 1 पे है वो कहाँ आ जाएगी, -1 और 0 के बीच में, और जो चीज 0 और -2 के बीच में है वो कहाँ आ जाएगी, 0 और +2 के बीच में। वैल्यू वैसे की वैसी रहेंगी फोल्डिंग इन टाइम में, केवल टाइम एक्सिस फोल्ड हो रही है, राइट। तो वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं। तो ये दोनों सिग्नल बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि ये सिग्नल A1 सिग्नल तो नहीं है, राइट। अब जरा इसको एम्पलीट्यूड फोल्डिंग करते हैं। एम्पलीट्यूड फोल्डिंग यानी -x - t, यानी कि अब हम कैसे कर रहे हैं, टाइम फोल्डिंग में हमने कैसे किया था, टाइम फोल्डिंग में हमने ऐसे किया था, राइट। मैग्नीट्यूड फोल्डिंग या एम्पलीट्यूड फोल्डिंग में हम कैसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, राइट, ऐसे। जो चीज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा वो नेगेटिव पे आ जाएगा, और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा वो पॉजिटिव पे आ जाएगा, टाइम एक्सिस चेंज नहीं होगी, राइट। तो जो चीज 0 से 2 के बीच में यहाँ पर है उसमें -1 है वैल्यू, तो वो +1 हो जाएगी, ये +1 हो गई। और जो चीज 0 और -1 के बीच में है +1, वो हो जाएगी -1, ये हो गई -1। टाइम वही का वही रहेगा इसमें, right? This is magnitude folding. This is called magnitude folding या amplitude folding, amplitude और magnitude folding, right? तो इसमें हम amplitude को फोल्ड कर रहे हैं, इसमें हम टाइम एक्सिस को फोल्ड कर रहे हैं। क्या ये दोनों सिग्नल बराबर हैं? क्या x ऑफ t माइनस t बराबर है? नहीं है सर, नहीं है। नो सर। नो सर। सिग्नल है ना, तो ऑड सिग्नल यस है, सर। इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, राइट। तो ये है कैसा सिग्नल, राइट, इट इज ए कंपोजिशन ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। इट इज ए कंपोजिशन ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। और यहीं पे क्वेश्चन चालू होता है आरटी का, वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज द सिग्नल इनटू इट्स इवन एंड ऑड पार्ट। ये क्वेश्चन होता है, डिकम्पोज द सिग्नल इनटू इट्स इवन एंड ऑड पार्ट, राइट। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, डिकम्पोज कैसे करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए सिंपल एक छोटी सी चीज देखिए, x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ इवन पार्ट ऑफ n प्लस x ऑफ ऑड पार्ट ऑफ n। कोई भी सिग्नल अगर है उसमें अगर इवन पार्ट 0 है तो वो हो जाएगा ऑड सिग्नल, अगर ऑड पार्ट 0 है तो वो हो जाएगा इवन सिग्नल, और अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो उनका सम हो जाएगा टोटल सिग्नल। इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट इज इक्वल टू द टोटल सिग्नल। अब हम इसमें जरा टाइम फोल्डिंग लगाएंगे x ऑफ -n, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इवन पार्ट -n प्लस x ऑड पार्ट -n, राइट। अब देखिए जरा क्या हो गया। अब ये जो इवन पार्ट ऑफ -n है, बाय डेफिनेशन कैन आई राइट दिस एज x इवन पार्ट ऑफ n। x ऑफ इवन पार्ट ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ इवन पार्ट ऑफ -n, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। इवन सिग्नल की डेफिनेशन क्या थी, x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ -n, राइट। ऑड सिग्नल की क्या थी, x ऑफ n इक्वल टू -x -n, ऑड सिग्नल डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये ऑड सिग्नल अगर मैं केवल इतना पार्ट लूं तो ये नहीं, राइट। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, -x ऑड पार्ट ऑफ। देख लीजिए दोबारा कहीं नहीं समझ में आया हो तो, ये इवन पार्ट है तो x ऑफ इवन पार्ट ऑफ n इक्वल टू x ऑफ इवन पार्ट -n, x ऑफ ऑड पार्ट ऑफ n विल बी इक्वल टू -x ऑड पार्ट ऑफ -n।
अब इस माइनस को यहाँ ना लिखकर माइनस में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो माइनस एक्स ऑड पार्ट एन इक्वल टू एक्स, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एड 1 and 2, ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो x of even part of n will be equal to x of n plus x of minus n divided by 2. This is the way how to get even part from a signal. हमें क्या करना है, हमें उसका टाइम फोल्डेड सिग्नल को उस ओरिजिनल सिग्नल में ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, राइट। x ऑड पार्ट ऑफ n के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 minus 2। तो x ऑड पार्ट क्या आ जाएगा, x of n minus x minus n डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें से टाइम फोल्डेड सिग्नल सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, राइट। अब फटाफट से इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे करना है। शुड आई रब दिस, एनीबॉडी इज नोटिंग, शुड आई रब, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये तो थ्योरी हो गया इसका। अच्छा, ये जो सिग्नल का जो फाइनल रिजल्ट आए, ये कंटिन्यूअस टाइम में भी वैसे ही होगा जैसे डिस्क्रीट टाइम में, उसका डेरिवेशन भी वैसे ही है जैसे डिस्क्रीट टाइम में, राइट। यानी कि अगर हम x इवन पार्ट t की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x of t plus x of minus t डिवाइड बाय 2 and x of odd part of t equal to x of t minus x of minus t डिवाइड बाय 2। अब जरा हमारा वो एग्जांपल था जो वो ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में ये था और 0 से -2 के बीच में -1 था, राइट। दिस इज आवर एग्जांपल x of t, दिस इज द टाइम एक्सिस, हियर इट इज 0, हियर इट इज 0। नाउ आफ्टर दिस x of minus t कैसा होगा, x of minus t फोल्ड करना है, तो जो 0 और -2 के बीच में था वो 0 और +2 के बीच में आ जाएगा और वैल्यू होगी -1, और यहाँ से 0 से -1 किसी को कोई प्रॉब्लम है, आवाज आई थी बीच में? सर आवाज नहीं है, एक बार Am I audible? Am I audible to all? नो सर, अब सर कटी हुई आ रही है, मतलब कट रही है। अच्छा, 1 मिनट। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see this. Here it is x of t signal, and this is x of minus t signal. Now minus x t minus x the amplitude, that is this -1 become +1. That will be everything. -1 minus x. These two are as well as these two are not equal to each other. This is not an even सर आवाज नहीं आ रही सर। odd signal. Is this clear? सर आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। नो सर, आवाज नहीं आ रही है। Okay, now is this clear? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? सर ये किसी का माइक हेलो, संभव तेरा माइक बंद कर यार। सर क्लियर नहीं है आवाज। बच्चे किसी ने अनम्यूट कर रखा होगा, खुद को म्यूट कर लीजिए और तब वो आवाज क्लियर आएगी एक्चुअली। सर अब सही है सर। अब सही आ रही है सर? आ रही है। आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए दोबारा से देखिए, एक्स टी ये है, एक्स ऑफ माइनस टी ये है, माइनस एक्स माइनस टी ये सिग्नल है। ये दोनों सिग्नल बराबर नहीं है तो ये इवन सिग्नल भी नहीं है, ये दोनों सिग्नल भी बराबर नहीं है तो ये ऑड सिग्नल भी नहीं है, राइट।
So it is a combination of even and odd. So हम अब even part निकालने जा रहे हैं. Even part कैसे निकालेंगे? Adding x of t with x of minus t divided by 2. तो हमें कैसे करना है? हमें इंटरवल में ऐड करना है. जैसे 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? 1. 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? -1. राइट? तो 1 plus -1 will be 0 divided by 2 will become 0. तो यहां से 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है? 0. दोबारा से देखिए, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? 1. इसकी वैल्यू कितनी है? -1. Adding these two value will become 0 divided by 2 will become 0. राइट? हम ये कर रहे हैं given part के लिए. राइट? तो x of t plus x of minus t. तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? 0. अब देखिए 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? -1. 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? 0. So 0 plus this value is -1. So 0 minus 1 divided by 2 is -1/2. So -1/2 हम यहाँ बना देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 2. 2 के बाद ये वैल्यू है 0. 2 के बाद ये वैल्यू है 0. राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 plus 0 divided by 2 is again 0. राइट? और एक बार आपने इवन पार्ट में एक साइड का बना लिया तो क्या मेरे को दूसरे साइड में बनाने की जरूरत है? नहीं है. तो 0 से -1 के बीच में कितना होगा? 0. 1 से -2 के बीच में कितना होगा? जितना ये है -1/2. आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से. इन दोनों को ऐड करिए, 0 से -1 के बीच में ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए और -1 से -2 करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए. आंसर विल बिकम 0. लेकिन हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है. राइट साइड में जो भी आ गया उसका सिमेट्रिकल बनाना है इवन पार्ट में और ऑड पार्ट में एंटी सिमेट्रिकल बनाना है. अब देखिए ऑड पार्ट में क्या करने वाले. ऑड पार्ट के लिए दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 कर लीजिए या दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन क्या है? xt माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2. राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को या तो ऐड करिए डिवाइडेड बाय 2 या इन दोनों को ऐड करिए डिवाइडेड बाय 2. ग्राफिकली ऐड करना है. राइट? तो यहाँ पे ग्राफिकली हम ऐड कर रहे हैं. फिर से वही इंटरवल में बीच में करेंगे और वन साइड करेंगे, दूसरी साइड एंटी सिमेट्रिकल होगा. तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू है 1. 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू है 1. राइट? तो 1 plus 1 हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. देयर इज सेम रिजल्ट यू विल गेट. तो 1 plus 1 is 2 divided by 2 is 1. तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो गई 1. 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो गई 1. अब 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू है 0 और 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू है 1. तो 0 plus 1 divided by 2 is 1/2. तो हम क्या करेंगे? यहां से लेंगे और ये ऐसे बनाएंगे. ठीक है? 0 से 1 के बीच में 1 है और 1 से 2 के बीच में कितना है? 1/2. और एक बार आपका पॉजिटिव साइड बन गया, इसके बाद तो 0 है, 2 के बाद 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इधर भी 0 हो जाएगा. और एक बार बन गया ये, इसको क्या करना है? एंटी सिमेट्रिकल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिकल. ये आ जाएगा ऐसे -1 -½ ये आ जाएगा -1 ये आ जाएगा -2 और उसके बाद इधर 0. ये क्या हो गया? ऑड पार्ट. दिस इज ऑड पार्ट, दिस इज इवन पार्ट. अब इसकी खासियत देखिए क्या है. इन दोनों को ग्राफिकली ऐड करोगे ऑड पार्ट और इवन पार्ट को, तो ओरिजिनल सिग्नल मिलना चाहिए. देखिए मिल रहा है. 0 से 1 के बीच में कितना है? 1 है. 0 से 1 के बीच में कितना है? 0 है. सो 1 plus 0 is 1. वी आर गेटिंग दिस. 1 से लेके 2 के बीच में -½ है. 1 से 2 के बीच में +½ है. तो 1/2 और -½ जब ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा. 2 के बाद इधर 0 है, 2 के बाद इधर भी 0 है. -1 से 0 के बीच में ये -1 है, -1 और 0 के बीच में ये 0 है.
तो 0 और -1 विल बिकम -1। ये -1 आ गया, 0 से -1, और -1 से -2 के बीच में ये -½ है, -1 से -2 के बीच में ये -½ है, -½ प्लस -½ इज -1, तो ये -1 मिल गया बिटवीन -1 एंड -2। -2 से ऑनवर्ड्स इस तरफ आ रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, राइट, दोनों को ऐड करेंगे। ये चेक है आपका, जब भी आप इवन पार्ट और ऑड पार्ट आ जाए आपको, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यानी कि आपने कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करी है। तो ये एक क्वेश्चन आता है आरटीयू में कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिकम्पोज करना इवन एंड ऑड पार्ट में। अब जल्दी से अपनी एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो जरा सॉल्व करके दिखाइए, और जिसका भी पहले हो जाए वो अपना कैमरा अपनी कॉपी की तरफ कर मेरे को दिखा दे कि वी हैव डन। क्लियर है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। टास्क समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। ये सिग्नल है, इस सिग्नल का जिसका भी आंसर आ जाए वो अपनी कॉपी कैमरा की तरफ कर मेरे को दिखा दे और नाम बता दे कि किसने किया, राइट? ये सिग्नल है एक्स ऑफ एन। फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट। टाइम इज 2 मिनट्स। टाइम इज 2 मिनट। मैं मीन टाइम अटेंडेंस भी ले रहा हूँ, राइट? तो जिसका होता जाए वो बताता जाए मेरे को, और मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपको। राघव तिवारी। प्रेजेंट सर। ओके, हो गया बेटा? आंसर आ गया क्या? हो रहा है, चल रहा है? चलो करते रहो, जिसका भी हो जाए वो मेरे को बीच में रोक देगा भले। रक्षा। यस सर। ओके, रोहन। रोहन, ठीक है। सौरभ। यस सर। ठीक है, ठीक है, अगर हो जाए तो वो उसी समय रोक दे मेरे को, ठीक है? निखिल मित्तल। अभी Yes, sir. आउट नहीं होना है, ठीक है? आंसर अभी बता रहे 1 मिनट में। निखिल मित्तल। यस सर। ओके, निराली गर्ग। यस सर। निशांत। यस सर। ओके, पलक। प्रेजेंट सर। ओके, परिधि। यस सर। परिधि, और कोई तो नहीं है परिधि नाम से आपकी क्लास? सब परिशी है। परिधि तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक,
परीशी, यस सर। बेटा परीशी नाम से और कोई तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। पार्थ, प्रेजेंट सर। आपकी सरनेम क्या है? पार्थ? पारिक। पारिक। और कोई है क्या पार्थ नाम से? पार्थ शर्मा है सर वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने लगा दिया। प्राची, प्राची शर्मा, प्राची शर्मा। सर प्रेजेंट सर। और सर वो एक्चुअली शर्मा नहीं है, सोनी है। अच्छा सोनी है, ओके। प्राची सोनी, ओके। देन सेकंड प्राची का सरनेम क्या है? सेकंड प्राची जो प्रेजेंट है उनका Yes, sir. सरनेम क्या है? सरनेम क्या है बेटा? आपका सरनेम क्या है बच्चे? Maheshwari. माहेश्वरी, ओके। Prachi Maheshwari. ओके ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं सर, चल रहा है। चलो करो करो। प्रथम, प्रेजेंट सर। ओके। प्रत्युष, यस सर। ओके। प्रणाल, Present sir. Prenal. ओके। प्रेनल, पूरा नाम क्या है बच्चे? Sir Prenal Gupta. गुप्ता, ओके। क्वेश्चन हो गया? सर चल रहा है। ओके। देन प्रियांशी, प्रियांशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियांशी। Yes sir. योर सरनेम इज? Sir Chashta. ओके। देन प्रियांश, प्रियांश इज देयर? Sir, it's Priyanshu Singhal. अच्छा प्रियांशु सिंगल, ओके। वो क्या है, इसमें स्क्रीन छोटी आती है ना तो वो नाम पूरा नहीं आता है। Okay, sir. चलिए प्रियांश, ओके। प्रियांशु, प्रियांशी हो गया। देन पुलकित, सर हमारा भी ऐसा प्रियांशु जैन। अच्छा प्रियांशु जैन भी है, ओके। और कोई तो नहीं है प्रियांशु? प्रियांशु सिंगल और प्रियांशु जैन हो गए, और कोई प्रियांशु तो नहीं है? चलिए पुलकित, प्रेजेंट सर। ओके। पुनीत, पुनीत, यस सर प्रेजेंट सर। ओके। राघव तिवारी, हो गया था, राघव तिवारी हो गया था, ओके। राज भटनागर, प्रेजेंट सर। ओके बच्चे। रिकॉर्डिंग भेज देना बच्चे, ठीक है? सर मेरा राघव अग्रवाल। राघव अग्रवाल है, ओके। राघव अग्रवाल, देन राजश्री, यस सर। और कोई तो नहीं बेटा राजश्री? आप भी हो ना एक? नो सर। यस सर। ठीक है। फिर राकेश प्रजापत, राकेश। राकेश, राकेश, सर ट्राई तो हो गया लेकिन ये नहीं पता गलत है कि सही है, एक बार आप देख लो। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं, बस ये खत्म हो रही है अटेंडेंस, उसके बाद देख रहा हूँ। एक मिनट बस। क्या? ठीक है ठीक है, अभी 2 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, एक एक मिनट रुको, अभी अटेंडेंस लग जाने दो। ये कौन है? RASHTRIK, यस सर यस सर। क्या नाम है? राष्ट्रिक वर्णोती।
अच्छा, राष्ट्रिक। आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी राष्ट्रिक? नो सर। ठीक है। रेखा उपाध्याय? यस सर। ठीक है बेटा। निखिल मित्तल हो गया है, निराली। निशांत कुमार भी हो गया है। पलक मारवाल? पलक मारवाल। आप लोग तब तक ये भी सोचिए कि ये अटेंडेंस हम कैसे सही से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोई तरीका अगर आपको आता हो इसका अटेंडेंस का? अरे स्क्रीनशॉट ले लो लिस्ट का जो आपके पास। इसका जो हाँ जी सर, आप चैट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चैट में आ रहा है। नो सर। यस सर। नो सर। सर स्क्रीनशॉट नहीं सर, के नाम आ रहे हैं। नेटवर्क मिस हो जाता है सर। सर नेटवर्क मिस हो जाता है सर कई बार। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे ना सर उसका। चलो आज तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, अभी बाद में फिर स्क्रीनशॉट से ले लेंगे। परिधि हो गया था, परिधि हो गया है, परिशी हो गया है, पार्थ हो गया है, प्राची हो गया है, प्राची हो गया है, प्रथम, प्रत्युष हो गया है, कृणाल, प्रियांशी अग्रवाल। प्रियांशी अग्रवाल। सर क्वेश्चन हो गया। प्रियांशु हो गया, प्रियांशु हो गया। रचित भार्गव? यस सर। यस सर। ठीक है। राज भटनागर हो गया, राजश्री हो गया, राकेश हो गया, राकेश्वर, रक्षा वर्मा? यस सर। सर क्वेश्चन हो गया है सर। अच्छा। राष्ट्रिक हो गया, रेखा हो गया, ऋषभ हो गया, ऋषभ महिला हो गया, ऋषभ मिश्रा? सर प्रेजेंट। ठीक है। देन रोहन हो गया, रोहित दत्वानी? यस सर। ठीक है। सचित बंसल? क्वेश्चन हो गया। हाँ बच्चे, एक मिनट बस, ये अटेंडेंस हो जाए। सागर जैन? यस सर। ठीक है। फिर है साक्षी जायसवाल? यस सर। ठीक है। देन साक्षी कंसल? यस सर। साक्षी शर्मा? यस सर। संभव अग्रवाल? यस सर। देन समीक्षा माथुर? यस सर। देन सत्यम कुमार ठाकुर? यस सर। सौरभ मंडल? यस सर हो गया सर। ठीक है। आई थिंक सबका हो गया, किसी का रह गया हो तो बता देंगे। सर मेरा रह गया। क्या नाम है? सर ऋतिक शर्मा। ऋतिक शर्मा। ठीक है। सर मेरा भी और रह गया। कोई भी रह गया हो तो बता दें। और रह गया। ठीक है। सर ऋषभ महिला। राकेश। हाँ बेटा, मैं बोल दिया था ना एक बार। ठीक है, मैं वो अटेंडेंस भेज दूंगा। इनके अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कर देना, मैं पेज कर दूंगा। अब आंसर देखिए इसका कैसा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर इसका। माइनस साइन जो होगा that will be 0 पर as it is, 1 पर 0 -2 and so on। यस सर। आप लोग म्यूट कर लीजिए बच्चे, आवाज आ रही है। -1 पे 2, -2 पे -1।
ये तो हो गया आपका जो x का माइनस n है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इवन पार्ट बनाना है, डिवाइड बाय 2 करके। उससे पॉजिटिव टाइम पर करना है, नेगेटिव टाइम पर अपने आप बन जाएगा। 0 पर देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 पर देखिए 2 - 2 0, फिर 2 पर देखिए -1 और 0 -1/2, और 3 पर देखिए 4 पर देखेंगे तो सब 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक बार राइट में बन गया तो लेफ्ट में अपने आप बन जाएगा। 0 पर 1 है, 1 पर 0 है तो -1 पे भी 0, 2 पर -1/2, 3 पर 0 एंड -3 -4 एंड सो ऑन इट इज 0। और इवन पार्ट बन गया आपका, राइट। आपके पास सिग्नल है तो ऑड पार्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हो। तो x ऑफ ऑड पार्ट ऑफ n क्या हो जाएगा, 0 पर जो वैल्यू है इसकी दिस माइनस दिस विल बी 0। 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 2, 1 पर इसकी वैल्यू है 0, तो 2 - 0 इज 2। 2 पर इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है -1/2, -1 and -1/2 will become -1/2। ये आ गया 2। 3 ऑनवर्ड्स ये 0 है, ये भी 0 है, तो इधर 0 रहेगा, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा इसका ऑड सिमेट्रिकल। तो ऑड सिमेट्रिकल कैसा हो जाएगा, -1 पे -2 और +2 पे +1/2, -2 पे +1/2 एंड सो ऑन। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही सिग्नल मिल जाएगा, राइट। इनका सही है, दे आर कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपने सही किया है। जिनका नहीं हुआ है वो देख लें कि कहाँ गलत किया है, राइट। ये हमने किया इवन एंड ऑड, मेन आर्च और डिजिटल सिग्नल समझा, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सिग्नल देखे आप सिग्नल देखिए आप। सर आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, डाटा खत्म। सर ब्लर आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अरे संभव माइक बंद रखा कर। संभव बंद रखना है यार, क्या दिक्कत है तेरे? संभव खुला ही रखता है सर। बेटा आप लोग अनम्यूट कर लिया करें सब लोग, जब बोलना होगा तब आप उसको ओपन करा करें। संभव मानता ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलिए ये ऑड पार्ट ऑफ n में हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑड पार्ट ऑफ n की मैंडेटरी पॉइंट है, वो ये है कि 0 पर उसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। 0 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी पॉइंट है ऑड सिग्नल के लिए। अगर ऑड सिग्नल 0 पर 0 नहीं होगा तो वो ऑड सिग्नल नहीं होगा। इवन सिग्नल के लिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, 0 पर 0 भी हो सकता है, 0 पर नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऑड पार्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी कंडीशन है कि 0 पर 0 होना चाहिए, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। जिसको भी कोई दिक्कत हो तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आप बात कर लेंगे, राइट। ओके ओके, थैंक यू सर। अरे पुलकित भाई क्या दिक्कत है? संभव भाई माइक बंद रखा कर तू। भाई और तेरे क्या पुलकित दिक्कत है? डेटा भाई खत्म तेरा ही हो अरे तेरे जाएगा। पंखे की आवाज आती रहती है भाई। हाँ हाँ यार पता नहीं कौन से खेतों में बैठ के क्लास अटेंड करता है। प्रथम और अरे ओए ओए ऋषभ सुन लो, क्लास ऑन हो जाती है, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। पागल है क्या भाई, बिल्कुल ही खोल ले रहे थे स्क्रीनशॉट।
उन्हीं तो हाँ, देख और डाटा खत्म हो गया देख। हाँ ये अलग ही डाट होती तो सुबह पहले क्यों देखता है वीडियोस फिर? उसका भी सही टाइम होता है जब देखा कर। प्रथम रात को मेरी देखते तरह हैं। थोड़ी ना सब यार तुम बनो भाई, ऐसे कोई जजे जब थोड़ी देखने की होती हो। तू तो आइडल सेट है जैसे पुलकित डेटा खत्म। डेटा चलो भाई, खत्म हो गया हो गया। मेरा भी खत्म हो जाएगा, मैं भी जा रहा हूँ। भाई अभी 2 बजे किसकी क्लास है? मंगीलाल की। अरे अब होगी वापस जब। क्लास है क्या? मंगीलाल सर। अबे ऑफिशियल में देख मंगीलाल मैसेज करते जा रहा है। अरे अरे क्लास कितने बजे से है? ओ अरे बता ना भाई क्लास कितने बजे? पता नहीं भाई, टाइम टेबल देखना पड़ेगा यार। अरे देख साले ले। खाना खाना खाने भी नहीं देंगे क्या? वही तो मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ इसलिए। फॉर एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी मंगूलाल।